السلام علیکم دوستوں، ماسٹر ورلڈ اسٹار میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رباعی، مصمت اور قطع۔ آج ہم ان تینوں کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ میں بہت ہی آرام سے اور بہت سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں رباعی سے۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی چار چار کے ہیں۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں چار مصرعوں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی شعر آپ کو چار مصرعے میں ملے، چار مصرع میں کوئی شعر ملے تو وہ کیا ہے؟ رباعی ہے، کیونکہ رباعی کا مطلب ہی چار ہوتا ہے۔ کوئی مصرع اکثر زیادہ تر کوئی مصرع دو دو کے ملتے ہیں، جیسے اب تک ہم نے پڑھا تھا غزل، قصیدہ، یہ سب دو دو مصرعے کے تھے، لیکن جو یہ رباعی ہے یہ چار مصرعے کے ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو چار مصرعے کے جو ملیں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ رباعی کہیں گے۔ چار مصرعے کے رباعی ہوتے ہیں، جس کے لغوی معنی چار چار کے ہیں۔ رباعی کا لغوی معنی چار چار کے ہیں۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں چار مصرعے میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے، یعنی ان چار مصرعے میں ایک مکمل مضمون ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو چوتھا شعر لکھا جائے، دوسرا شعر لکھا گا چار مضمون میں، چار میں، اس کا الگ مضمون ہوگا۔ اس طرح رباعی کو لکھا جاتا ہے۔ رباعی کا وزن مخصوص ہوتا ہے، اس کا وزن جو ہے مخصوص ہوتا ہے۔ اس کو ایک طرح کا یہ رکھا جاتا ہے کہ کس ٹائپ کا یہ ایک شعر ایک طرح کا ہوگا، دوسرا شعر دوسرے طرح کا ہوگا۔ اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ تو رباعی کا وزن مخصوص ہوتا ہے۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ لانا لازم ہے۔ یہ چار مصرع ہے، ایک منٹ اس کو صاف کر دوں، ہاں، یہ چار مصرع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں قافیہ چاہیے، اس میں قافیہ چاہیے، لیکن اور اس میں قافیہ چاہیے۔ یہ تیسرے والے میں قافیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لائیں، کوئی بہتر، کوئی عیب نہیں ہے، نہ لائیں تو کوئی ضائع بھی نہیں ہے اس میں، آپ لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے۔ تو تیسرے مصرعے میں اگر قافیہ نہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں، آپ لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے۔ اس کے موضوعات مقرر نہیں ہوتے۔ رباعی کے جو موضوع ہیں وہ مقرر نہیں ہوتے، یہ کسی بھی انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا غزل میں عشق و محبت کی بات ہوتی ہے، قصیدہ میں کسی کی مدح یا کسی کا مصمت کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم نے مرثیہ میں پڑھا تھا کہ کسی کے جیون پہ اس کے مرثیہ، اس کے رنج و غم کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن رباعی جو ہے اس میں کوئی موضوع جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی موضوع کو اس پہ اٹھا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اردو فارسی کے شعراء نے ہر نوع کے خیال کو اس میں سمویا ہے، یعنی اردو اور فارسی کے جو شاعر ہیں انہوں نے رباعی میں ہر طرح کے خیال کو اپنے رکھایا گیا ہے۔ رباعی میں ہر طرح کے خیال کو رکھا گیا ہے، عشق و محبت کو بھی رکھایا گیا ہے، سیاسی بھی رکھا گیا ہے، کسی کے وفاداری بھی رکھا گیا ہے، کسی کی مذمت بھی کی گئی ہے اور کسی کی تعریف بھی کی گئی ہے، یعنی اس میں ہر چیز رکھا گیا ہے۔ رباعی کے آخری دو مصرعے، خاص کر چوتھا مصرع پر ساری رباعی کا اثر کا حسن و اثر اور زور کا انتصار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو رباعی کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے، یہ جو چوتھا مصرع ہوتا ہے، چوتھا والا، یہ چوتھا مصرع سب سے اہم مانا جاتا ہے رباعی کا، اور ان تینوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس چوتھے مصرعے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ رباعی کے آخری دو مصرعے، خاص کر چوتھے مصرعے پر ساری رباعی کا حسن و اثر اور زیادہ کا اور زور کا انحصار ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء ادب اور فصحائے سخن نے اس امور کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی جو ادب کے علماء تھے اور جو فصحائے سخن تھے، جو بڑے بڑے شعراء تھے، جنہوں نے اس کو الگ الگ ترتیب دی ہے، ان کے یہاں یہ چار جو ہمارے رباعی کے جو چار مصرع ہیں، یہ جو چوتھا ہے اس پہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ یہ چاروں جو شعر، یہ تینوں شعر کا یہ ہیڈ رہے گا، یہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض نے رباعی کے لیے چند معنوی و لفظی خصوصیات کو بھی لازم قرار دیا ہے، مطلب کچھ ایسے بھی شعراء ہیں جنہوں نے رباعی کو کچھ خصوصی موضوع بھی دے رکھا ہے۔ عروض کے مختلف کتابوں میں رباعی کے مختلف نام ہیں۔ رباعی کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے رباعی کو رباعی بھی کہتے ہیں،
तराना भी कहते हैं और दो बीती भी कहते हैं। दो बीती, एक बीती, दो बीती, ये चार होता है ना। तो दो, एक शेर को दो लाइन के वो एक बीती और ये दूसरा बीती, अब दोनों को मिला दें तो ये रबाई हो गया, चार हो गया। तो इसका मतलब पूरा मतलब रबाई होता है। तो इसको रबाई को रबाई, तराना और दो बीती, बाज़ ने इसे चार मिसरा भी कहा है, क्योंकि इसमें चार मिसरे होते हैं, ऐसे चार करके मिसरे होते हैं, तो इसे चार मिसरा भी कहा है रबाई को। तो रबाई को रबाई, तराना, दो बीती और चार मिसराई, जुफ्ती और खसी भी कल लिखा गया है। जुफ्ती और खसी भी लिखा गया है। मौलाना अहमद रज़ा की एक रबाई मुलाजा फरमाए। अभी मौलाना अहमद रज़ा की एक रबाई आ रही है, चलिए देखते हैं उसको रबाई कैसी होती है। देखिए ये चार मिसरे की रबाई है, पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा। हम देख रहे हैं कि हम काफिया और रदीफ ये दोनों हैं, ठीक है। ये काफिया और रदीफ, यहाँ भी ये काफिया है, ये रदीफ है, ये काफिया है, ये रदीफ है, ये काफिया, ये रदीफ है, ये रदीफ है। तो जो काफिया है इसमें तीसरा में नहीं है। हमने पढ़ा था कि काफिया की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तीसरा में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इस इंसान नहीं, इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान यह कहता है मेरी जान है यह। रबाई का यह शेर मौलाना अहमद रज़ा खान बरेली का है, उन्होंने लिखा है ये शेर। और इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ इसमें रबाई का इस्तेमाल, इस रबाई में कहाँ कहाँ हम काफिया का रदीफ, कहाँ काफिया और रदीफ का इस्तेमाल हुआ है और कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा रबाई यहीं तक था। अब हम आगे पढ़ेंगे कता। कता को हम देखेंगे, कता किसे कहते हैं। कता, कता शायरी की एक सन्फ है। कता शायरी की एक सन्फ है। ये चार मिसरों पर मुश्तमिल होता है। दो शेरों के मजमूए को कता कहते हैं, यानी दो शेर को, जहाँ दो शेर लिखे जाए उसको एक कता कहते हैं। एक शेर ये हुआ, एक शेर ये हुआ, तो ये क्या हुआ, एक कता हुआ। ठीक है, एक लाइन को फ़र्द कहते हैं, दो लाइन को एक शेर कहते हैं और दो शेर को एक कता कहते हैं। ये हुआ। इस शेर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह के भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं रबाई के अंदाज में। पर रबाई अलग होता है और कता के अंदर लिखने का अंदाज अलग होता है। तो कता शायरी की एक सन्फ है, यह चार मिसरों पर मुश्तमिल है। दो शेरों के मजमूए को कता कहते हैं। इसके पहले मिसरे में काफिया या रदीफ को की कोई कैद नहीं है। अगर हम पहला मिसरा लिख रहे हैं तो इसमें काफिया और रदीफ की कोई कैद नहीं है। आपका दिल चाहे तो आप काफिया रदीफ दे सकते हैं, दिल ना चाहे तो आप काफिया रदीफ नहीं दे सकते, ये आपके ऊपर है। लेकिन दूसरे मिसरे में काफिया लाजिम मौजूद होता है। इसके बाद अगर रदीफ भी लगाया जाए तो मुसन्निफ की मर्जी है। पहले दो मिसराए में काफिया लाजिम होता है, लेकिन दूसरे मिसराए में काफिया लाजिम होता है। ठीक है, तो जैसे हम पहला मिसरा लिख लिए, ये दूसरा मिसरा लिख लिए, तो पहला में भले हम काफिया रदीफ दें या ना दें, लेकिन इस दूसरे में हमें काफिया रदीफ देना होगा। लेकिन दूसरे मिसरे में काफिया लाजिम होता है, काफिया देना लाजिम है इसमें। इसके बाद अगर रदीफ भी लगा दिया जाए तो मुसन्निफ की मर्जी, मतलब काफिया तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद अगर रदीफ आप लगा देते हैं तो कोई आपकी मर्जी, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हैं, वरना रदीफ के बगैर भी कता के उसूल मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन काफिया ज़रूरी है। पहले दो मिसराए के बाद तीसरा मिसरा आता है, इसमें भी काफिया और रदीफ की कोई कैद नहीं। आगे दिया है, लेकिन काफिया ज़रूरी नहीं। पहले दो मिसरे के बाद जो तीसरा मिसरा आता है, जो हम तीसरे मिसरे की बात करते हैं यहाँ पे, तीसरे मिसरा आता है, उसमें भी काफिया और रदीफ की कोई कैद नहीं। इसमें पहला में काफिया रदीफ की जैसे कैद नहीं थी, वैसे ही तीसरा में भी काफिया रदीफ की कोई कैद नहीं है। जैसे दूसरा में काफिया था वैसे चौथे में भी काफिया दिया जाएगा। उसी तरह काफिया रदीफ की कोई कैद नहीं, लेकिन चौथे और आखिरी मिसरे में चौथे और आखिरी मिसरे में मिसरे का अहम आवाज़ काफिया ज़रूरी होता है, और दूसरे मिसरे के मुताबिक अगर काफिया के साथ रदीफ है तो वही रदीफ चौथे मिसरे में काफिया के बाद इस तरह लिखा जाता है। कता हमने पढ़ा है कि चार मिसरे का होता है, ठीक है।
दो शेर के 4 मिसरे के 2 शेर होते हैं, दो मिसरे के 1 शेर होते हैं। तो पहला जो हम मिसरा लिखते हैं इसमें काफ़िया और रदीफ़ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, उसकी कोई कैद नहीं। लेकिन जब हम दूसरा मिसरा लिखेंगे तो इसमें काफ़िया लिखना ज़रूरी है, रदीफ़ आपके ऊपर है, आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। फिर जब हम तीसरा मिसरा लिखते हैं तो इसमें भी हम काफ़िया और रदीफ़ लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। लेकिन जब हम चौथा का लिखेंगे तो इसमें हम काफ़िया ज़रूर लगाएंगे। अगर ऊपर जैसे दूसरे मिसरे में जैसे हमने लिखा था, वैसे चौथे मिसरे में भी हमें काफ़िया और रदीफ़ लगाना होगा। अगर हमने रदीफ़ लगाया है तो चौथे में भी हमें रदीफ़ लगाना होगा, और हमने काफ़िया इसमें जैसा काफ़िया इसमें लगाया उसी से मुतल्लिक़ काफ़िया इसमें लगाना है, चौथे वाले में काफ़िया हमें लगाना होगा। ठीक है। काफ़िया के बाद इसके अलावा कता इस तरह भी लिखा जाता है कि पहले 2 मिसरों में काफ़िया या काफ़िए के साथ रदीफ़ लगाया जाए, मगर तीसरे मिसरे को काफ़िया और रदीफ़ से आज़ाद रखा जाए, मगर आखिरी मिसरा यानी चौथे मिसरा में पहले 2 मिसरों के का अहम आवाज़ काफ़िया और वही रदीफ़ लगाया जाता है। मतलब इसको आप रबाई के अंदाज़ में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने रबाई में पढ़ा था कि शुरुआत के पहला, दूसरा और चौथा, इन तीनों में हम काफ़िया रदीफ़ लगा सकते हैं। तीसरा में आपके ऊपर है, आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। उसी तरह यह वहाँ भी दिया है कि आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ज़ौक़ का एक कता बतौर नमूना है। अगर आगे हम ज़ौक़ का एक कता देखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखिए ज़ौक़ का एक कता है, इनमें लिखा है ए ज़ौक़ बस न आपको सूफ़ी ए ज़ौक़ बस न आपको सूफ़ी जताएं, मालूम है हकीकत हो हक़ जनाब की, निकले हुए कदेश से अभी मुँह छिपाए कि तुम, दाबे हुए बगल में सुराही शराब की। इसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखिए जनाब की, यहाँ पे काफ़िया, यहाँ पे रदीफ़, यहाँ पे काफ़िया और यहाँ पे रदीफ़ दे दिया गया है। लेकिन ऊपर और नीचे पहला मिसरा दूसरे मिसरे में कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका जी चाहे लगाएं या जी चाहे ना लगाएं, उस हिसाब से इसमें दिया गया है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे मुसम्मत। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई है, तो उसे हम ज़रूर सुधारेंगे। आगे देखते हैं मुसम्मत। मुसम्मत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जितने भी चीज़ें आ रही हैं सब अरबी ज़बान के लफ्ज़ आ रही हैं, याद रखिएगा। मुसम्मत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, क़ता भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ था और रबाई भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ था। मुसम्मत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लग़वी माने पिरोई हुई और जुड़ी हुई चीज़ है। अभी हमने देखा है मुसम्मत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लग़वी माने पिरोई हुई और जुड़ी हुई चीज़ है। इसका लग़वी माने क्या है? पिरोई हुई और जुड़ी हुई चीज़ है, ये याद रखिएगा, पिरोई हुई और जुड़ी हुई चीज़ है। मुसम्मत एक सनाए लफ्ज़ी भी है। मुसम्मत एक सनाए लफ्ज़ी भी है जिसकी तारीफ़ यह है कि जब शायर किसी शेर में असल काफ़िए के अलावा 3 मुसज्जा या हम वज़न फ़ुक़रे या काफ़िए मज़ीद नज़्म करे तो उसे सनाअत मुसम्मत कहते हैं। मुसम्मत में हम ये चीज़ एक देखते हैं कि मुसम्मत के जो शेर होते हैं ना, वो 3 शेर के होते हैं या 4 के होंगे या 5 के होंगे या 6 के होंगे, यानी 3 से लेके 10 तक के शेर इसमें होते हैं। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं इसमें इस्तिलाह शेर में। इसमें मुराद वह नज़्म है जिसका हर बंद एक मुकर्रर तादाद की मिसराए पर मुश्तमिल हो। एक बंद में 3 मिसरे से लेकर 10 मिसरे तक हो सकते हैं। यानी मुसम्मत के जो मिसरे होते हैं वो 3 से लेकर 10 बंद तक हो सकते हैं। इस तरह मिसरों की गिनती के लिहाज से मुसम्मत की 8 किस्में बनती हैं। मुसम्मत की कितनी 8 किस्में बनती हैं, जिसमें 4 किस्में ये हैं। पहला मुसल्लस, 3 बंद के जो होते हैं मिसरे उनको मुसल्लस कहते हैं। जो 4 बंद के होंगे उनको मुरब्बा कहेंगे। जो 5 बंद के होंगे उनको मुखम्मस कहेंगे, और जो 6 बंद के होंगे उनको मुसद्दस कहते हैं। ठीक है। आम तौर पर ये मुश्तमिल है, ये 8 में से ये जो 4 है मुश्तमिल है, यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ये। यानी जिनका हर बंद बिलतरतीब
3, 4, 5 और 6। हमें हमने बताया था 3 मुसल्लस को कहते हैं, मुरब्बा को 4 कहते हैं, मुखम्मस को 5 कहते हैं और मुसद्दस को 6 कहते हैं। मिसराओं पर मुश्तमिल होता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर नज़्म मदो जज़्र इस्लाम, इनकी बहुत मशहूर किताब है मदो जज़्र इस्लाम, और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी हुई है कि किसकी लिखी हुई किताब है। ये किस हैयत में लिखी है? तो मुसद्दस की हैयत में लिखी है। मदो जज़्र इस्लाम मुसद्दस की हैयत में लिखी है, जो मुसद्दस हाली के नाम से भी मौसूम है। मुसद्दस हाली के नाम से भी इसे जानते हैं। इस तरह डॉक्टर इकबाल की मशहूर की शहर आफाक नज़्म है, जिसका नाम है शिको और जवाब शिको। शिको और जवाब शिको ये भी क्या है? मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। ठीक है, मुसद्दस की यानी 6 बंद की लिखी गई है। उसके बाद आएगा बेशतर मरसिये भी इसी हैयत में लिखे गए हैं, यानी कोई 3 में, कोई 5 में, कोई 6 में, कोई 4 में, कोई 6 में, ऐसे ही लिखा गया है। 3, 4, 5, 6। इस मुसम्मत में 1, 3 से लेकर 10 तक में लिखे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर होते हैं 3, 4, 5, 6। 3 यहाँ देखें दिया है ना, 3, 4, 5 और 6 मिसरे में लिखे जाते हैं। जवाब शिको के इशार मरबूत नमूने मुलाहजा फरमाएं। अभी जवाब शिको के जो हैं, ये जवाब शिको, इसका मौलाना इकबाल साहब ने लिखा था, अल्लामा इकबाल साहब ने, तो उसको आज हम देखेंगे आगे कि ये क्या है। अल्लामा इकबाल साहब की ये मुसम्मत है, जिसका शेर आपके सामने है। देखिए, हम ये देखते हैं कि 4 हैयत में लिखी है। 4 हैयत ये है, ठीक है। उसके बाद 2 ये है, उसके बाद 2 और आगे है, तो इसमें कट गया है, इसमें दिया नहीं है, बस इतना ही दिया है इसमें। तो इसी के 4 के मिसरे के इसमें लिखे हैं। तो चलिए इसको देख पढ़ते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मुसद्दस खुदसुल असल में रफ़ात पर नज़र रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पर गुज़रती रहती है, पर गुज़र रखती है। इश्क था फितना गुरो, सरकश व चालाक मरा, आसमां चीर गया, नाला बेबाक मरा। तो आज का हमारा यहीं तक रहा। आज हमने रबाई, कता और मुसम्मत को पढ़ा है, और आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।